Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to our online biology classes and I'm your teacher सादिया साकिब। हमारा आज का लेसन हमारे पिछले लेसन की कंटिन्यूएशन है। हम अपने पिछले लेसन में एनाटॉमी ऑफ स्टमक के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक में क्या क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, इनकी लोकेशन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्टमक, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। अपने आज के लेसन में वी विल डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन स्टमक कि ह्यूमन स्टमक अपना फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है, हाउ फूड इज़ डाइजेस्टेड इन आवर स्टमक। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। आपकी आसानी के लिए मैंने डायग्राम्स ऑलरेडी ड्रॉ कर दी हुई हैं जो हमने अपने पिछले लेसन में भी यूज़ की थी, ताकि आपको आज के लेसन को कंटिन्यू करने में आसानी हो जाए, राइट। सो दिस इज़ द डायग्राम फॉर स्टमक और इसमें मैंने सब पार्ट्स को लेबल भी कर दिया हुआ है आपकी आसानी के लिए। आई विल गिव यू अ क्विक रिकैप ऑफ द प्रीवियस लेसन। दिस इज़ द ह्यूमन स्टमक. Esophagus is the food pipe which opens in the stomach at the cardiac region. Then here is present the ring of the smooth muscles which is called as cardiac sphincter, and cardiac sphincter actually control कर रहा है food की entrance को from esophagus into the stomach. And this region is close to heart, so that's why it is called as cardiac region. Then this dome shaped structure of the stomach is called as fundus. Then the main part, big area, larger part of the stomach, this is called as body of stomach. Then the end part of the stomach is called as pylorus or pyloric region, and here also ring of smooth muscles is present which is called as pyloric sphincter, which controls the exit of food from stomach into the small intestine. Then wall of the stomach consists of 4 layers. These layers are serosa, which is the outermost. It is also called as vertical peritoneum. Below serosa, second layer is present, that is called as muscularis. Below muscularis, the third layer is present, which is called as submucosa, and the innermost layer is called as mucosa. Now each and every layer is performing its function in the digestion of the food. Serosa protection provide कर रही है, outermost layer है stomach की shape को maintain करने में help करती है। सिरोसा के नीचे सेकेंड लेयर दैट इज़ अ मस्क्यूलरिस। स्टमक में जो मस्क्यूलरिस है ये थोड़ी सी यूनिक है, थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो मस्क्यूलरिस है ये फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइड हुई हुई है। द अपर वन इज मेड अप ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, then the middle one is made up of the circular muscles, and the inner one is made up of the oblique muscles. So 3 layers में smooth muscles organize हुए हैं। Now what is the logic behind, इसकी significance क्या है? To give maximum mixing effect और grinding effect to the stomach, ताकि stomach के अंदर जो mechanical digestion का process होना है वो बहुत best way में perform हो सके, और muscles जो है वो different positions पे organize हुए हैं ताकि वो हर तरफ से food के ऊपर force exert करें और वो stomach secretions के साथ अच्छे तरीके से mix हो सके और उसकी digestion जो है वो अच्छे तरीके से perform हो सके। So this is the significance of presence of 3 layers in the muscularis in the stomach wall. Then there is a third layer which is submucosa, और यहाँ पे हमें blood vessels की सप्लाई मिलती है और जो न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर भी कर रही हैं, मटेरियल्स को डिलीवर कर रही हैं, कलेक्ट कर रही हैं। Then the innermost layer is called as mucosa. Mucosa is very important layer of the stomach, और म्यूकोसा में हमें बहुत सारी गैस्ट्रिक पिट्स नज़र आती हैं जो हमने अपने प्रीवियस लेसन में डिस्कस भी किया था, विच आर ओपनिंग्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। हियर आई हैव ड्रॉन वन गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर यू। Mucosa is made up of simple columnar epithelium, you can see, ठीक है, which is made up of the column shaped cells, and then there is a gastric gland which is made up of 4 types of cells. The uppermost surface cells, these are called as surface mucus cells, right, as the name is indicating mucus cells हैं तो ये mucus secrete कर रहे हैं। mucus एक secretion है, it's a water like secretion. Below the mucus cells there are present parietal or axanthic cells which are responsible for the production of HCl, hydrochloric acid, and the intrinsic factor. Then there are present chief cells or principal cells which are responsible for the release or secretion of the pepsinogen enzyme. Then there are present the endocrine cells which are responsible for the secretion of gastrin hormone. So these are the cells present in the gastric glands which are present in the mucosa layer of the stomach. Right, now come to the function of the stomach. स्टमक में 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड, राइट। लेकिन इसका एक फंक्शन जो है हम कंसिडर कर सकते हैं टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द फूड। स्टमक में फूड टेम्परेरीली स्टोर भी हो जाती है बट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। डेफिनेटली जैसे जैसे फूड की डाइजेशन होती जाएगी तो वो स्टमक को एग्जिट करती जाएगी, वहाँ से निकल जाएगी। सो डाइजेशन इन स्टमक इज डिवाइडेड इंटू 2 स्टेप्स, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। एज अ नेम इज इंडिकेटिंग, मैकेनिकल डाइजेशन, फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इन द स्टमक, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल डाइजेशन, यानी जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन
और सम सॉर्ट ऑफ एंजाइम्स दे आर नॉट इन्वॉल्व, तो इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन का नाम देते हैं. मिक्सिंग ऑफ बोलस विद द गैस्ट्रिक जूस, राइट. बोलस हमने नाम दिया था फूड विच वॉज स्वॉलोड और रीच द स्टमक, दैट वॉज कॉल्ड एज बोलस. तो उसकी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ जो अच्छी तरह से मिक्सिंग का प्रोसेस होता है, इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन का नाम देते हैं. और इसमें स्टमक की जो मस्क्यूलैरिस की लेयर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज मिक्सिंग वेव्स आर जनरेटेड बाय एक्टिविटी ऑफ द मस्क्यूलैरिस. मिक्सिंग waves. Now what are mixing waves? These are actually the waves of contraction and relaxations by stomach muscles. ठीक है, स्टमक के जो मस्क्यूलैरिस के स्मूथ मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस की वजह से मिक्सिंग वेव्स इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फूड के साथ गैस्ट्रिक जूस को अच्छी तरह से मिक्सअप कर देती हैं, राइट. इनकी कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन के रिजल्ट में एक फोर्स एक्सर्ट होती है फूड के ऊपर और वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सअप हो जाती है. सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज मिक्सिंग वेव्स एंड दे आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द मस्क्यूलैरिस. और इस मिक्सिंग के रिजल्ट में और जो स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसके रिजल्ट में बोलस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एसिडिक thick liquid which is now called as chyme. Before we were saying that food is called as bolus, अब हम उसी bolus के लिए एक और terminology introduce कर रहे हैं, that is called as chyme, क्योंकि अब further उसकी processing हो चुकी है. Bolus is now transformed into a thick liquid. पहले वो semi solid form में था, लेकिन जब वो gastric juice के साथ mix up हो गया है, उसकी mechanical digestion हो गई है, फर्दर छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया है, तो हमने उसको काइम का नाम दे दिया है. इट्स अ थिक लिक्विड, लिटरल मीनिंग इसका होता है जूसी, जूस लाइक सिक्रीशन, राइट. और इट इज़ एसिडिक इन नेचर. और एसिडिक क्यों है? बिकॉज जो गैस्ट्रिक जूस है दैट इज एसिडिक इन नेचर, राइट. देन केमिकल डाइजेशन एज अ नेम इज इंडिकेटिंग कि इसमें अब केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, सम एंजाइम्स आर इन्वॉल्व जो फूड की डाइजेशन के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं. इससे केमिकल डाइजेशन को पढ़ने से पहले वी विल गो टुवर्ड्स द सिक्रीशंस ऑफ द स्टमक. हमारे स्टमक में कौन सी सिक्रीशंस रिलीज हो रही हैं? द मेन सिक्रीशन इज द गैस्ट्रिक जूस, राइट. गैस्ट्रिक जूस है. गैस्ट्रिक जूस इज फर्दर, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ, इसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स शामिल हैं? गैस्ट्रिक जूस इज मेड अप ऑफ म्यूकस, HCl, hydrochloric acid, intrinsic factor, पेप्सिनोजेन एंड गैस्ट्रिन. ऑल दीज कॉम्पोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस. यानी इन सबके कम्बिनेशन के रिजल्ट में जो सिक्रीशन प्रोड्यूस हुई है बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उसको हम गैस्ट्रिक जूस का नाम देते हैं. अब इंडिविजुअली इन सब कॉम्पोनेंट्स की फंक्शनिंग को हम स्टडी कर लेते हैं. व्हाट इज द फंक्शन परफॉर्म बाय दीज कॉम्पोनेंट्स. म्यूकस एक जो है वाटर लाइक सिक्रीशन होती है एंड इट लुब्रिकेट्स द फूड. ये फूड को लुब्रिकेट करने का काम करता है, उसको सॉफ्ट करने का, मॉइस्ट करने का काम करता है. इट इज़ एल्कलाइन इन नेचर. ठीक है, जो म्यूकस है ये एल्कलाइन नेचर में है एंड इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ द HCl एज वेल एज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, राइट. एक थिक लेयर है, एल्कलाइन नेचर की लेयर है और ये स्टमक की इनर लाइनिंग को पूरी तरह से कवर करके रखती है. विस्कस है, थिक है, एक कवरिंग बन जाती है ताकि HCl जो कि एसिड है, HCl प्लस जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनका इफेक्ट ना हो सके स्टमक के अपने सेल्स के ऊपर और वो डैमेज ना हो सके, अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम. देन HCl, hydrochloric acid as the name is indicating, so it kills the microbes present in the food, right. जो फूड हमने swallow की थी उसमें कुछ माइक्रोब्स अभी भी मौजूद हो सकते हैं, तो HCl क्योंकि एसिड है तो ये इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काम करता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वो फर्दर हमारी बॉडी में पेनिट्रेट ना कर सकें और इन्फेक्शंस ना कॉज कर सके. प्लस HCl एसिडिक इन्वायरमेंट को मेनटेन करता है स्टमक के अंदर और एसिडिक इन्वायरमेंट इज सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द पेप्सिन एंजाइम, क्योंकि पेप्सिन एसिडिक pH पे काम करता है और अगर ये एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं होगा तो पेप्सिन प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा. देन वी हैव इंट्रिंसिक फैक्टर which is also present in the gastric juice and this intrinsic factor is very important. It is basically a glycoprotein. This intrinsic factor is a glycoprotein. It's a conjugated molecule. Now what are conjugated molecules? Students, conjugated molecules are formed by the mixing of two different molecules which belong to different categories. दो different molecules हैं, like carbohydrates को अगर हम देखें तो वो एक different category है, proteins को हम देखें तो वो एक बिल्कुल different category है, लेकिन carbohydrate और proteins की जब mixing होती है, इनकी attachment होती है तो इसके result में एक नया molecule develop होता है with different properties, तो that is called as conjugated molecule, right. तो हमारे पास जो intrinsic factor है
that is made up of glycoprotein. It's a conjugated molecule. कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अटैचमेंट के रिजल्ट में ये मॉलिक्यूल बनता है और फंक्शन इसका क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन. ठीक है, ये विटामिन B12 को प्रॉपरली एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. नाउ थोड़ा सा मैं आपको विटामिन B12 के बारे में बताती चलूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट और कंपोनेंट ऑफ आवर फूड. और विटामिन B12 हमें यूजुअली मिलता है फ्रॉम द एनिमल फूड सोर्सेज. ठीक है, हम वो फूड कंपोनेंट जो एनिमल सोर्सेज से कंज्यूम करते हैं उनमें विटामिन B12 जो है वो अबंडेंटली मौजूद होता है. जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते हैं, मिल्क है, योगर्ट है, चीज़ है, उसके अलावा मीट है, एग है, तो ये सब जो है ये एनिमल सोर्सेज से फूड्स ऑब्टेन की जाती हैं. तो इनमें हमें विटामिन B12 मिलता है. और विटामिन B12 जो है ये हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. लाइक इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. विटामिन B12 से हमारी बॉडी में न्यू ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, उसके अलावा DNA फॉर्मेशन, राइट. तो ब्लड सेल्स आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द विटामिन B12 एज वेल एज न्यू DNA मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. सो उसके लिए विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसकी जो है वो एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. क्यों? और इंट्रिंसिक फैक्टर जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में रिलीज़ होता है, इसका काम ये है कि ये हमारे विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. और अगर इंट्रिंसिक फैक्टर डिस्टर्ब होगा, प्रॉपर कंसंट्रेशन में ये सिक्रीट नहीं हो रहा होगा, तो उसके रिजल्ट में the absorption of the vitamin B12 it will be disturbed. So that's why it's very important. Then another very important component, that is the pepsinogen. Pepsinogen is the enzyme secreted from the gastric glands. और पेप्सिनोजेन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होता है, यानी ये अपनी एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ नहीं हो रहा, ये डायरेक्टली एक्ट नहीं कर सकता. पेप्सिनोजेन विल बी कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन एंजाइम विच इज़ द एक्टिव फॉर्म और फिर ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करेगा. देन देयर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड दैट इज़ कॉल्ड एज गैस्ट्रिन. गैस्ट्रिन इज़ द हार्मोन और ये हार्मोन रेगुलेट कर रहा है स्टमक की सिक्रीशंस को, यानी ये जो गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन हो रही है इसको रेगुलेट करता है, इसकी कंसंट्रेशन को, कि व्हाट शुड बी द एक्यूरेट कंसंट्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक. सो दीज आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय दीज सिक्रीशंस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अबाउट द इनर एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक. स्टमक का जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ एसिडिक इन नेचर. ठीक है, और वो एसिडिक pH किस वजह से मेंटेन हुई हुई है यहाँ पे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से. इसका एक फंक्शन तो मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किया था कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो स्टमक में मौजूद हैं, इनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है. और प्लस पेप्सिनोजन एंजाइम के लिए जो है ये बहुत सूटेबल इन्वायरमेंट है. पेप्सिन एंजाइम जो है वो एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है. दूसरा, लो pH जो है ये फैसिलिटेट करता है कि जो प्रोटीन्स की डाइजेशन का प्रोसेस स्टमक में हो रहा है उसमें जो बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से वो बॉन्ड्स जो हैं वो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेप्सिन एंजाइम की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है. राइट नाउ, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन द स्टमक. तो स्टमक के अंदर फूड में जो प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं उनकी डाइजेशन का प्रोसेस होता है. कंप्लीट नहीं होता लेकिन काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 80 to 90% डाइजेशन हो जाती है. उसकी रीज़न ये है कि गैस्ट्रिक जूस में ओनली प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन इज़ प्रेजेंट. राइट, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स मौजूद नहीं होते. सो दैट्स वाई स्टमक में इन कंपोनेंट्स की डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, ओनली प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड. ठीक है, और वो सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स में, पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड फर्दर देयर डाइजेशन विल बी कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ फूड जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है इनटू द एसिडिक काइम और ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक उसमें से प्रोटीन्स की डाइजेशन भी हो चुकी है. अब इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट द रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रिन हार्मोन ऑन द सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस. यानी हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है इसकी रेगुलेशन किस तरह से होती है. तो इसमें गैस्ट्रिन हार्मोन विच इज़ सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये भी इसमें अपना पार्ट प्ले कर रहा है. अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3
liters ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज रिलीज्ड एवरी डे बाय द स्टमक. स्टमक तकरीबन एक दिन में 2 से 3 लीटर्स के करीब जो है गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कर रहा है. और अब इसमें जो हार्मोन्स जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को रेगुलेट कर रहे हैं, राइट, जो स्टमक की सिक्रीशंस को रेगुलेट कर रहे हैं, दीज आर द गैस्ट्रिन हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, ये भी एक हार्मोन है, एंड कोलसिस्टोकाइनिन. आई एम रिपीटिंग द नेम्स ऑफ दीज हार्मोन्स, राइट. ये हार्मोन्स हैं जो स्टमक की सिक्रीशंस को रेगुलेट कर रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन को बैलेंस कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, कि कितनी रिक्वायरमेंट है इनकी, कितनी इनकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, वो सब जो है ये हार्मोन्स रेगुलेट कर रहे हैं. गैस्ट्रिन से हम अब फेमिलियर हो चुके हैं क्योंकि हमने ये वर्ड काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है इस टॉपिक में. सिक्रेटिन इज अनदर हार्मोन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड ये भी हार्मोन है, एंड कोलसिस्टोकाइनिन, दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू, सो आई एम रिपीटिंग, आप इससे यूज टू हो जाएं, कोलसिस्टोकाइनिन. लेकिन इस टॉपिक में हम सिर्फ गैस्ट्रिन के बारे में बात करेंगे, बाकी हार्मोन्स को हम अपने अपकमिंग टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, राइट. सो गैस्ट्रिन की जो सिक्रीशन हो रही है, अब इसमें हार्मोनल रेगुलेशन और नर्वस रेगुलेशन, ये दोनों मिल के जो है ये स्टमक की सिक्रीशंस को रेगुलेट कर रहे हैं. हमारे नर्वस सिस्टम में जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, हमारे ब्रेन का जो पार्ट है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, इनको कंट्रोल करता है, राइट. अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाइक वी आर ईटिंग, वी आर च्यूइंग, हमने फूड को इंजेस्ट किया, उसके बाद च्यूइंग एक्टिविटी हो रही है, मैस्टिकेशन हो रही है, टेक्टाइल रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इन आवर ओरल कैविटी, ठीक है, स्टमक में. तो फूड की प्रेजेंस का जो स्टिमुलस मिलता है इन रिसेप्टर्स को, तो दे आर सेंडिंग द मैसेजेस टुवर्ड्स द मेड्यूला, हमारे ब्रेन सेंटर की तरफ मैसेजेस जाते हैं और हमारे नर्वस सिस्टम को ये इंडिकेशन मिल जाती है, ये मैसेज कन्वे हो जाता है कि फूड इज़ प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट शुड बी डाइजेस्टेड. तो उसकी डाइजेशन होने के लिए फिर ब्रेन जो है वो मैसेजेस भेजता है टुवर्ड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. Like right now we are talking about the stomach and the gastric glands. तो gastric glands की तरफ यहाँ पर मैसेज आता है from the brain center, जो इन सेल्स को वो मैसेज रेगुलेट कर देता है कि ये अपनी अपनी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, ठीक है. और जब ये सब सिक्रीशंस रिलीज होती हैं तो उनके कम्बिनेशन को हम गैस्ट्रिक जूस का नाम दे देते हैं. और नर्वस सिस्टम की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिलीज होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज एसिटाइल कोलिन, ठीक है. दिस इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल कंपाउंड है जो हमारे न्यूरॉन सेल्स रिलीज करते हैं और बेसिकली ये एक मैसेंजर है, ये ब्रेन का मैसेज लेके आया है, राइट. सो इन केस ऑफ स्टमक, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स के करीब आकर न्यूरॉन्स जो हैं ये एसिटाइल कोलिन को रिलीज करते हैं और एसिटाइल कोलिन स्टिम्युलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेल्स को कि वो अपनी अपनी सिक्रीशंस रिलीज करना शुरू कर दें, ठीक है. जैसे यहाँ पे म्यूकस सेल्स को स्टिमुलस मिलेगा तो वो म्यूकस प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे. पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स जब स्टिमुलेट होंगे तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करना शुरू कर देंगे. चीफ सेल्स जब स्टिमुलेट होंगे तो वो पेप्सिनोजन एंजाइम जो है वो रिलीज करना शुरू कर देंगे. इसी तरह से जब ये एंडोक्राइन सेल्स जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का हिस्सा हैं, जब ये स्टिमुलेट होंगे तो ये फर्दर गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, राइट. और फर्दर जो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज हो रहा है वो ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होकर दोबारा ब्रेन तक मैसेज लेके जाएगा और ब्रेन उस मैसेज को रिसीव करने के बाद फर्दर एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से मोर गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक. तो इस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा हार्मोनल सिस्टम जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और इनकी इस कंबाइंड एक्टिविटी की वजह से स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है और वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है. फिर उसके बाद जो है स्टमक में जो है मिक्सिंग वेव्स जनरेट हो रही हैं जो गैस्ट्रिक जूस को अच्छे तरीके से फूड के साथ मिक्सअप कर रही हैं और उस मिक्सिंग के रिजल्ट में स्टमक जो है अपना फंक्शन ज़्यादा बेटर वे में परफॉर्म कर रहा है. प्लस एक तो मिक्सिंग वेव्स जनरेट हो रही हैं और दूसरा जो पेरिस्टॉल्टिक वेव जो हमारे जीआईटी के स्टार्ट से जनरेट हुई थी फ्रॉम फेरिंग्स, फेरिंग्स से एसोफेगस और एसोफेगस से स्टमक और स्टमक से फॉरवर्ड आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ वो पेरिस्टॉल्टिक वेव मूव कर रही है. तो मिक्सिंग वेव्स ऑल्दो जनरेट हो रही हैं, फूड को मिक्स कर रही हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं. लेकिन जो पेरिस्टॉल्टिक वेव जो जीआईटी में मूव करती हुई आ रही है दैट इज़ मच स्ट्रॉन्गर और वो फूड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है. तो स्टमक में फूड की डाइजेशन हो रही है,
मिक्सिंग वेव्स अपना काम कर रही हैं, और प्लस जो पेरिस्टाल्टिक वेव आ रही है वो फूड पे एक्ट करती है और फूड इज पुश्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन नाउ, राइट। और एकदम से सारी फूड जो स्टमक के अंदर मौजूद है वो एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव नहीं कर जाती है, ये आहिस्ता आहिस्ता चंक बाय चंक, ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके एक पेरिस्टाल्टिक वेव आती है तो फूड का कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पे पाइलोरिक रीजन, और पाइलोरिक रीजन से पाइलोरिक स्फिंक्टर से होता हुआ वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएगा, राइट। तो फिर इसी तरह से अगली पेरिस्टाल्टिक वेव आएगी, अगेन सम फूड इज नाउ एंटर्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो इस तरह चंक बाय चंक जैसे जैसे स्टमक अपना काम करता जा रहा है, फूड की डाइजेशन होती जा रही है, तो उसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता पेरिस्टाल्टिक वेव्स की एक्टिविटी के रिजल्ट में फूड इज नाउ ट्रांसफर्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय क्रॉसिंग दिस पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। और काफ़ी हद तक फूड की डाइजेशन का प्रोसेस स्टमक में कंप्लीट हो चुका होता है। नाउ रेस्ट ऑफ डाइजेशन इट विल बी कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि स्टमक में प्रोटीन्स की डाइजेशन जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, बट फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दे आर नॉट डाइजेस्टेड अप टिल नाउ। कार्बोहाइड्रेट्स की पार्शियल डाइजेशन का प्रोसेस ओरल कैविटी से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो हमारी फूड का फैट्स का कॉन्टेंट है, जो लिपिड्स हैं, वो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुए हैं। तो अगले पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में इन सब कंपोनेंट्स की कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी एंड देन देयर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन द ब्लड। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा आज का टॉपिक इतना ही था एंड दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्टमक। बाकी अगले लेसन में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अप टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।